Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, question number 2 of exercise 13.1. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Dear students, the vessel is a combination of two solids. That means the first part of the vessel is of the hemispherical part, and the second one, which is mounted on this hemispherical part, that is of cylindrical form. The diameter of the hemisphere, जो diameter है hemisphere का diameter यहाँ से यहाँ तक ये 14 centimeter है, and the total height of the vessel is 13 centimeter. यहाँ से यहाँ तक जो ये है, ये height vessel की सारी height hemispherical part plus cylindrical part, the height of this vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. We have to find the inner surface area of the vessel. इसका surface area, inner surface area हमें ये निकालना है. That means the inner surface area of the vessel is the curved surface area of this hemispherical part plus curved surface area of this cylindrical part. इसके लिए हमें फार्मूला याद करना, फार्मूला सिलेंड्रिकल पार्ट की उसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ये दो फार्मूला हम पहले देखेंगे. लेट दिस द सिलेंडर whose radius is r and height is h. अगर ये सिलेंडर में लूंगा, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक r है और इसकी हाइट अगर h सेंटीमीटर है, तो फिर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा 2 पाई आर h. इसी तरह अगर हम लेंगे एक सफियर लेंगे, ये सॉलिड है सफियर, सॉलिड सफियर, अगर हम इसकी रेडियस r लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ दिस sphere be r, therefore its curved surface area will be equal to 4 pi r square. जब sphere फुल sphere का curved surface area 4 pi r square, तो half sphere का, that means hemisphere means half sphere, that means उसका surface area होगा 2 pi r square. यहाँ 4 pi r full sphere का कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर. तो हियर when the cylindrical part is mounted on the hemispherical part, therefore the radius of this cylindrical part and the radius of this cylindrical part and the radius of this hemisphere will be equal. As we know that the diameter of the hemisphere is 14 centimeter. जब यहाँ से यहाँ तक 14 centimeter है hemisphere का diameter, that means the diameter of this cylinder is also equal to 14 centimeter. तो रेडियस होगी, जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस होगी 14 डिवाइड बाय 2, दैट इज 7. रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 7. 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज 7. हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जब यहां से यहां तक इसकी रेडियस 7 है तो हाइट भी 7 होगी. यहां से यहां तक इसकी रेडियस 7 है, हेमिस्फीयर की रेडियस 7 है, यहां से यहां तक भी 7 होगी. हाइट ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 7. Therefore, as we know that total height is 13 centimeter, तो फिर हम इस सिलेंडर की हाइट निकालेंगे. सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या होगी? सॉरी 13 माइनस दिस 7. यहां से यहां तक 7 है, यहां से यहां तक 13 है, तो फिर 13 minus 7 is equal to 6 centimeter will be the radius of this cylindrical part.
वही हम यहाँ पर लिखेंगे, नोट करेंगे। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द वेसल माइनस 7 माइनस height of the hemispherical part, that is 7, that is equal 13 minus 7 is equal to 6। ये हमें हाइट निकली सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 6 सेंटीमीटर। अब हम इस सारे वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालेंगे। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एज वी नो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 pi r/h and curved surface area of hemisphere is equal to 2 pi r square। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर नोट किया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 pi r/h, वही हमने यहाँ पर लिखा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 pi r/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 pi r स्क्वायर, वही हम यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 pi r स्क्वायर। एज रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पर हम देखेंगे 2 pi r/h 2 प्लस 2 pi r स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या है? यहाँ पर भी 2 pi r है, यहाँ पर भी 2 pi r है, ये कॉमन निकालेंगे 2 pi r कॉमन निकालेंगे। यहाँ क्या बच गया? ओनली h प्लस 2 भी निकाला, पाई भी निकाला, यहाँ से r भी, ये r स्क्वायर है, एक r मैंने निकाला, यहाँ पर बच गया r, वही हम लिखेंगे h प्लस दिस r, ये 2 pi r एंड 2 pi r कॉमन निकाला। अब 2 के बदले 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22 और 7 इंटू r का वैल्यू 7 इंटू हाइट, h मीन्स हाइट, इट इज 6, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस r रेडियस इज 7। नेक्स्ट स्टेप में 7 1 हजार 7 1 हजार यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 7 and 7 7 1 हजार, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर बच गया 22 इंटू 2 दैट इज 44 इंटू 6 प्लस 7 इज 13। 44 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, it is 572 square centimeters। It is the surface area, inner surface area of the vessel. Therefore, the inner surface area of the vessel is 572 square centimeters. Thank you.